Welcome back, dear students, on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh, and today we will discuss about our next topic, that is replication of chapter Molecular Basis of Inheritance. Dear students, what is a replication? Replication means reproduction or copying. Here we are going to discuss about replication of the DNA or genetic material. This is the first part of the central dogma, and the replication or the theory of replication or the principle of replication is given by Watson and Crick. Then what is central dogma? Central dogma says that DNA after transcription from mRNA and this mRNA after translation from protein. After translation from protein, this is a process of translation, this is a process of transcription. But when DNA from DNA or the replication or the copying of DNA takes place, then the process is called as replication. Okay, the next question is that where this process happens, ये process कहाँ पे होती है, and when this process happens और ये process कब होती है. The process takes place in the S phase of the cell cycle. Okay, if here we are going to discuss about cell cycle. This is a complete cell cycle, and here we divide the cell cycle into different phases. There are 4 phases of the cell cycle. A largest phase, S phase, this is called G1 phase. Here somewhere is G0 phase. S phase or synthetic phase where DNA replication takes place, and G2 phase और gap 2, and here M phase और dividing phase. बेटा देखते हैं सेल साइकिल के अंदर ये बेसिक 4 phases होती हैं, एक एक्सटर्नल G0 phase भी होती है. In the S phase DNA replication takes place. बेटा इस S phase के अंदर DNA replication होता है. Then what happens if our cells start from here, then here we have 46 number of chromosomes. We have 46 number of chromosomes, and in up to the end of the S phase, our cell contains 92 number of chromosomes. Okay, now in the end of the S phase, here in the starting of the G phase, we have 46 number of chromosome, or nucleus of our cells have 46 number of chromosome. That same nucleus at the end of the S phase have 92 number of chromosomes, because here DNA replication takes place और copying of DNA takes place. बेटा यहाँ पे DNA कॉपी हो चुका है, जो अभी 46 नंबर था वो एग्जैक्ट डबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद हमारा सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा. ओके, और ये डिवीज़न अगर मियोसिस है तो एक सेल से ये सिंगल सेल 4 सेल्स बनाएगी. ठीक है, और सारी सेल्स के पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है 23. कभी आप लोगों ने सोचा है हाउ दिस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 4 cells and every cells have 23 number of chromosome, means total number of chromosomes are 92. If this if this cell division is mitotic, अगर बेटा ये mitotic है, then our cells form 2 cells from the one cell. एक सेल से 2 सेल बनाती है, and each cell have the same number of chromosome, means 46 means total number of chromosomes 92, और टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डबल्स. टोटल नंबर जो जेनेटिक मटेरियल का होता है वो डबल हो जाता है. इट्स हैपन ड्यू टू द रिप्लिकेशन. ये सिर्फ इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ द रिप्लिकेशन. द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द सेल साइकिल, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ओके, while proposing the double helical structure for the DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for the replication of DNA. पर जैसे ही वो वाटसन और क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर करे, उसके तुरंत बाद उन्होंने अनदर हाइपोथेसिस और वी कैन से दैट अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो मिसेल्स ने स्थाल ने किया था. द वी कैन से दैट theory of the DNA replication given by the Watson and Crick to quote their ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलोज. बेटा उन्होंने उस टाइम क्या स्टेटमेंट दिया था? जो ओरिजिनल स्टेटमेंट वाटसन और क्रिक ने दिया था वो यहाँ पे लिखा है.
It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggested a possible copying mechanism for the genetic material. Watson and Crick 1953. 1953 में उन्होंने ये कहा था It not escape our notice that, ये हमारी नोटिस में है कि डीएनए की एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है जिससे डीएनए यहाँ पे उन्होंने लिखा है पॉसिबल कॉपिंग, एक ऐसी पेयरिंग होती है इसमें उसका कॉपिंग होता है. मीन्स वी कैन से दैट इफ दिस इज a genetic material, then after reproduction this genetic material form सच टाइप ऑफ द फिनोमेना. ठीक है बेटा, अगर ये सिंगल था तो अभी टोटल डबल हो चुका है आफ्टर द रेप्लिकेशन. यहाँ पे जब रेप्लिकेशन हुआ तभी टोटली डबल हो चुका है. मीन्स ये कैसे होता है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए. फर्स्ट ऑफ द मॉडल इज द डिस्पर्सिव टाइप, पहला बेटा दिया गया था तो डीएनए रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव बताया गया. सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, ये डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होता है. थर्ड सेमी कंजर्वेटिव. अभी आपको हम वन बाय वन बताएंगे हाउ द डिस्पर्सिव मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, हाउ कंजर्वेटिव एंड हाउ सेमी कंजर्वेटिव मेथड टेक्स प्लेस. ओके, द स्कीम सजेस्टेड दैट, ये जो बेटा इनका स्कीम था डबल रेप्लिकेशन के लिए, द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज द टेम्पलेट. टेम्पलेट मीन्स, ओके, जस्ट थिंक this is a double helical DNA, and at the time of replication what happens, both the strands are separated from a specific location. किसी न किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाते हैं. एंड both the strand act as template. टेम्पलेट मीन्स क्या होता है, एज ए पेरेंटल स्टैंड एक्ट करते हैं और इन दोनों के ऊपर एक एक नया डॉटर स्टैंड बनता है और इनके ऊपर एक डॉटर स्टैंड बनता है. मीन्स टोटली इसका कॉपी कैसे होता है विद द, इट कैन से द कॉपिंग इज एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड. हम कह सकते हैं कि जो कॉपीज है सेमी कंजर्वेटिव है. मीन्स आधा जो स्टैंड होगा और सिंगल स्टैंड दैट इज एक्ट एज टेम्पलेट और वो पुराना स्टैंड होगा, और सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोपगेटिंग स्टैंड और डॉटर स्टैंड. एक टेम्पलेट स्टैंड होगा जो पुराना होगा और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड उसका बनेगा और डॉटर स्टैंड बनेगा वो नया होगा. तो जो नया डीएनए बनेगा, मीन्स जो 46 नंबर था अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, और ये जो 92 हुए, सारे 92 में दोनों मीन्स 46 नंबर थे, अभी 92 हो गए हैं. इसमें क्या होगा, 23 ओल्ड स्टैंड का होगा एंड 23 न्यू स्टैंड का. इसके अंदर भी 23 जो था वो ओल्ड डीएनए था, इट इज कॉल्ड टेम्पलेट डीएनए, और जो 23 था दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज अ न्यू स्टैंड. ओके, सो द स्कीम suggested that the two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and another newly synthesized strands. I think everyone understand this. This scheme was called as semi-conservative DNA replication method. Okay, then everyone wants what is the proof that the DNA replication would be सेमी कंजर्वेटिव. क्या प्रूफ है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? फॉर दैट टू वर्कर्स और टू साइंटिस्ट मिशेल्सन एंड स्टॉल्स गिव देयर एक्सपेरिमेंट फॉर द in 1958 proposed or experimentally proved that DNA replication is semi conservative. DNA replication semi conservative होता है. इसके लिए बेटा उन्होंने एक हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप N15 का यूज़ किया था. What to do? It is now proven that DNA replication semi-conservatively. It was shown first in the Escherichia coli and subsequently in higher organisms, such as plant and human cells. Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. Okay. They grew E. coli or Escherichia coli in a medium containing the यहाँ पे देखते हैं 15N. 15N मीन्स हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन. हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन. बेटा क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप के साथ में
ग्रो कराए कल्चर मीडियम के ऊपर, तो क्या होगा, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, वो हैवी आइसोटोप से लेबल्ड हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल के अंदर हैवी आइसोटोप हो जाएंगे। और जो हम ऑटो रेडियोग्राफ में देखेंगे या किसी भी एक जो डेफिनेट हमारा एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा जो हमको चेक करके टेस्टिंग यूनिट होगा, वो हमको बताएगा दैट पार्टिकुलर डीएनए इज लेबल्ड विद द हैवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, as the only nitrogen source for many generations, the result was that 15N was incorporated into newly synthesized DNA, as well as another nitrogen containing compounds. This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride density gradient centrifugation. बेटा क्या गया, CSCl cesium chloride density gradient centrifugation. Okay, note that N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from 14N only based on the densities. ठीक है बेटा, ये हैवी है, सीजियम क्लोराइड हैवी है, तो जैसे ही बेटा क्या करेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, इसको ऊपर से डालेंगे नीचे की तरफ ओके, ये ब्लॉक्स होंगे। अब ब्लॉक्स में जैसे ही बहना स्टार्ट करेगा, ऊपर से डालेंगे नीचे की तरफ बहना स्टार्ट करेगा, ड्यू टू देयर हैवीनेस, हैवी होने की वजह से बेटा क्या होगा, जितना भी N15 होगा वो यहीं कहीं ऊपर ही रह जाएगा। ओके, और जो N14 होंगे, जो नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस बेस पे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर डीएनए स्टैंड कंटेन्स 50N और हैवी आइसोटोप एंड दैट कंटेन द नॉर्मल आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन. Next, they transfer the cells into a medium with normal N14 or nitrogen 14 and took samples at the various definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on cesium chloride density gradient centrifugation to measure that density of DNA. You can recall what centrifugal force is and think why a molecule with higher mass density was sediment faster. ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है. वी कैन से दैट अगर आपने अपने घर के अंदर देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द कर्ड, then what we found cheese or etc in the center because of it have very high density. जब बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स क्या करता है, जिस चीज़ की भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो हैवी होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ चले जाते हैं. So here we can see that once again here. Okay, I think you people understand this. बेटा क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने ये डीएनए को N15 और हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप से लेबल कर लिया. ओके, लेबल करने के बाद में जब इसका प्रोपगेशन, जब इसका रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो बेटा क्या होगा, जब इसकी कॉपिंग स्टार्ट होगी तो जैसे हमने आपको भी बताया था, इफ दिस डीएनए स्ट्रैंड इज N15, अगर बेटा ये N15 वाला डीएनए स्ट्रैंड है, मीन्स हैवी आइसोटोप से लेबल्ड है. अब इसके बाद में क्या होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड के जो दोनों स्ट्रैंड होंगे एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे, और इनके साथ में एक नए डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे. ठीक है, अगर ये N15 था तो अब यहाँ पे ये 15 होगा और जो नया स्ट्रैंड बना है 14 होगा, ये 15 होगा, ये 14 होगा. तो धीरे धीरे 15 की जो डेंसिटी या कंटेंट होगा वो कम होता जाएगा. बेटा जब अगला डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, ये एक N15 वाला एज ए टेम्पलेट, 14 वाला एज ए 14 एज ए टेम्पलेट वर्क करेगा, ये भी एज ए 14 टेम्पलेट वर्क करेगा. एक बेटा यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, ओके, N15 एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा होगा, यहाँ भी N15 एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा होगा. अब क्या होगा, जब नए स्टैंड बनेंगे, इस बार 4 स्टैंड बन जाएंगे. दिस बेटा दोनों 14 होंगे, इसके साथ में एक 14 एक 15, एक 14 एंड 15, और इसके साथ में दोनों 14 हो गए होंगे. सो वी कैन से दैट हियर एज वी सी हियर, देखो यहाँ पे उन्होंने करके बताया, पहले N15 था, कंप्लीट N15. आफ्टर दैट सेमी कंजर्वेटिव होने की वजह से बेटा क्या हुआ, हाफ कैसा हो गया,
N15 और हाफ स्टैंड कैसे हो गए N14। आफ्टर दैट ये N14 अलग काम करेगा एज ए टेम्पलेट, ये N14 अलग एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा था, N15 एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा था, N15 एज ए टेम्पलेट वर्क कर रहा था। तो बेटा एक तो स्टैंड N14 सेकेंड N14 लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नई नई स्टेजेस आती जाएंगी, वैसे क्या होगा, द डेंसिटी और वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द N15 स्टैंड बिकम लोअर डाउन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटीज़ कम होती जाएंगी। सो ये एक्सपेरिमेंट आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हमने स्टैंड लिया और जब हमने ऑटो रेडियोग्राफ में देखा तो हम देख रहे थे जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रही थी वैसे वैसे N15 का कंसंट्रेशन और हाई आइसोटोप का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा था। Thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N medium, that is after 20 मिनट। बेटा ई कोलाई के अंदर जो सेल डिवीजन होता है इट इज अबाउट 20 मिनट्स, जो 20 मिनट के अंदर हो जाता है। हैड अ हाइब्रिड, पहली बार बेटा क्या मिला था, इसे यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिड। पहली बार जितने भी हमको मिले थे सारे के सारे हाइब्रिड थे। ओके, हाइब्रिड और इमीडिएट डेंसिटी और इंटरमीडिएट डेंसिटी, जो उनकी डेंसिटी थी वो इंटरमीडिएट हो चुकी थी, मीन्स हाफ हो चुकी थी, 15 और 14 हाफ हो चुकी थी। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर द अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स सेकेंड जनरेशन वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। उसके बाद बेटा क्या था, जितना हाइब्रिड था, ओके हियर वी सी दैट जितना हाइब्रिड था, दूसरी बार में बेटा डीएनए निकला जितना हाइब्रिड था, दो जो डीएनए स्टैंड थे वो हाइब्रिड थे और दो ही डीएनए स्टैंड, मीन्स अगर टोटल 100% है तो 50% हाइब्रिड डीएनए था और 50% लाइटर डीएनए था, और वी कहते हैं दैट प्योर डीएनए था जिसमें दोनों 14 स्टैंड थे, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एज वेल एज लाइट डीएनए। If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of the light? And it is a question for the students. बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलेंगे what is the